And also we know that we are your special people, called out, separated for your purpose in this world. Because of your grace, we are still alive. We are able to gather together as church of the living God. Yes, Lord, it is your master plan that we live according to your plans and purposes in which we will be. Always at your word, at your command, at your direction, with your wishes in our life. We have nothing to boast in ourselves, nothing to merit in ourselves, except the merit what we get through the blood of Jesus Christ, washed us afresh and making us your separated people, holy people, a holy nation, holy priesthood, royal priesthood. We thank you, Father. We can intercede for our dear ones who are in need, and also we can think of situations where they are all separated by distance, but we can put our mind and spirit in unison, in one-mindedness. Whereas the first century, first church gathered together 120 people. They were of one mind, one spirit, and you could administer your Holy Spirit upon them. The birth of church has taken place where the word was preached. 3,000 people were saved one day and baptized, joined the church. Yes, Lord, what a legacy you have given to us to go forward. And also your command, you be my witnesses wherever you go, to the Jerusalem and all Judea and in Samaria and to the uttermost parts of the earth. Lord, as a church, we have no other business. We have no other desire. We have no ambition except that your name and your glory be exhibited in every situation of our life. At this time, Lord, we pray for today's service. Let thy people gather together. Even Moses told Pharaoh, let my people go and worship me. Yes, Lord, your desire is that we go out of Satan's bondage and we will have the joy of the Lord filling our hearts, being captivated by your grace and your love, your care, your provisions. When we see all these things happening to us, when the world is in turmoil and pain and desertion and with lot of situations happening, there's no goodness in this world we can appreciate. We can appreciate your goodness, Lord, because your goodness is always along with your name, God. God is good all the time. All the time, God is good. It's our privilege, Lord. Thank you, Father. We pray that your servant will be able to give the direction how to pray this day as we are gathered together. Through thy word, through thy mind may be revealed, exhibited. Brother, you're muted. Can you unmute yourself, please? We can understand that your guidance and directions only will be properly captivated in our spirit so that we will be bound by you, not bound by any other worries and thoughts of this world. We thank you, Father. We bless you, Lord, for this wonderful opportunity. Keep us together in thy sanctuary. It is world-size sanctuary. We know that your goodness will overflow us so that we will be able to generate ourselves to be your gracious people living in this world of destruction and deceit. Yes, Lord, you have given us a life far with this world and excellent work of Jesus Christ whenever he went to village by village, city by city, doing always good for the people. Help us also that we will be able to do that, not only praying, but participating in every need of our church. As we thank you for this day, keep us under your unction, under your covering, that nothing untoward will take place during these days as we look forward for your return or our call hope to be with you. We are prepared, Lord, a prepared generation. We thank you, Father. Bless you, Lord.
In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 Decided. सॉन्ग नंबर 459 हिंदी, तेलुगु 455। हम है प्रभु का घर, स्वर्गीय घराना। उसका हम 5 और 7 स्टांजास गाएंगे। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, इसमें प्रभु खुद ही रहता है। प्रभु का घराना इस जग में है, प्रभु का घराना इस जग में है। सेवक को अधिकार सौंपा है, सेवक को अधिकार सौंपा है। हर एक को उसका काम दिया है, हर एक को उसका काम दिया है। द्वारपाल हर घड़ी जागता है, द्वारपाल हर घड़ी जागता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, इसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, इसमें प्रभु खुद ही रहता है। वह दिन निकट है, प्रीतम आएगा, वह दिन निकट है, प्रीतम आएगा। जागते रहो उसने कहा है, जागते रहो उसने कहा है। सच्चा विश्वास योग बन कर रहते, सच्चा विश्वास योग बन कर रहते। धीरज से बाट उसकी जोते हैं, धीरज से बाट उसकी जोते हैं। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। Over to you, brother. Kiran. Hear me? Yes. आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक वचन की बात को हम पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 25 अध्याय, 25 चैप्टर और उसका वर्स 9। दूसरा इतिहास की किताब, उसका 25 अध्याय, उसका 9 वचन मैं पढ़ता हिंदी में। अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जाओ, जो 100 की कर चांदी मैं इजरायली दल को दे चुका हूं, उसके विषय में क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को आशीष करे और हम सबों को प्रसन्न को द्वारा प्रोत्साहित करते हुए हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु अगुवाई करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे सहायता के लिए। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक बार फिर प्रभु जी हम स्वर्गीय घराना के नाई प्रभु जी आपके खून से खरीदे हुए संतों के साथ में मिलकर जो बोरीवली मंडली को प्रभु जी आपने स्थापित किया है, और आज हम मंडली के नाई, परिवार के नाई मिलते हुए आज ऑनलाइन में प्रभु जी हम आपके चरण पे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आए हैं, क्योंकि प्रभु जी हमें प्रार्थना करने का अधिकार हमें दिया है। और प्रभु जी हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार जो है प्रार्थना का जीवन, जो आने वाले घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होने का योग्य बनने के लिए प्रभु जी
जो हमें आप प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हो, इसलिए प्रभु जी आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना में जाने से पहले जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है, 2 क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 25 का 9 वचन को प्रभु जी इस वचन को द्वारा आप हमसे मुलाकात करें और हमें तैयार करें हमारी प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी, वचन के द्वारा आप मुझे हम सबों को काटिए, छांटिए और हमें प्रार्थना करने का योग्य बनाइए, ताकि हमारी प्रार्थना आपके सामने ग्रहण योग्य हो सके। मैं तुझ को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अयोग्य निकम्मा दास हूँ। एक बार फिर मुझे क्रूसकाल में छिपाइए और वचन के बोलने के लिए प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को चाहते हुए यिर्मयाह 1:9 पद को फिर एक बार हम क्लेम करते हुए, दावा करते हुए, हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर जो भाग को हमने पढ़ा है, दूसरा इतिहास किताब 25 अध्याय का 9 वचन में, यहाँ पर एक राजा के बारे में हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो उसका नाम है अमस्या। और ये राजा यहूदियों का राजा है, यहूदियों का राजा है ये। और यहाँ पर इस राजा के बारे में आज हम कुछ बातें हम सीखते हैं और फिर हम हमारे जीवन को जांचते हुए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना, जैसा हमारे जीवन में जानते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसा हथियार है जो हम हमारा इस संसार में रहते हुए आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने का योग्य बनने का एक ही हथियार है, एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना। क्योंकि हमारे जीवन में पारिवारिक प्रार्थना, मंडली की प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा इस संसार के अंदर हर एक बातों के ऊपर, जो बुराइयों पर जय पाते हुए और शैतान की हर एक उस हथियार को विफल करते हुए हम जब मिल के, हम जब मंडली के नाई मिल के हम जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो उस शैतान की हार होती है और हमारे जीवन में प्रभु एक अद्भुत काम करता है। क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि मंडली की प्रार्थना जो है बहुत ही इसमें सामर्थ्य है। मंडली की प्रार्थना में बहुत ही एक ताकत है। इस बात को हमने अनुभव किया है, हम जानते भी हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने देखा था कि जो सैटरडे अपना मंडे का दिन सवेरे अपना प्रार्थना, देश की प्रार्थना के लिए किस तरह इफिसी 3 अध्याय का 10 वचन के अनुसार परमेश्वर ने कलीसियाओं को अधिकार दिया है, इस ऐसे अधिकार दिया है, तो अधिकार में हम भी शामिल हैं। तो हमारे जीवन में प्रभु हमको सहायता करे इस प्रार्थना की सामर्थ्य को, प्रार्थना के महत्व को समझते हुए। और मंडली की प्रार्थना तो और भी खास है और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियो, मंडली के प्रार्थना में जब आते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर की महानता को हम देखते हैं। क्योंकि किसी दास ने कहा था कि एक छोटे से छोटे विश्वासी, एक कमजोर विश्वासी, एक नया विश्वासी भी जब घुटने में आते हैं प्रार्थना में, तो शैतान कांपता है। ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर ने प्रार्थना में हमें दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु हमको सहायता करे इस प्रार्थना को, महत्व को समझते हुए। यद्यपि हम आपस में मिल नहीं पाते हैं, ऑनलाइन में भी इकट्ठा होते हैं, फिर भी हमें प्रभु अनुग्रह करे, हमें प्रभु सहायता करे और प्रार्थना में भाग लेते हुए हम इस प्रार्थना के द्वारा शैतान के हर एक उन हर एक जो उसको क्या बोलते हैं, शैतान की युक्तियों को विफल करते हुए हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अमस्या के बारे में। यहाँ पर राजा अमस्या जब परमेश्वर का योजना के अनुसार उसके पिता योआश मरने के बाद में जब यहूदी में जब राजा बनता है यहाँ पर अमस्या, तो यहाँ पर देखते हैं कि उसके उम्र केवल 25 साल का था। द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल 25 चैप्टर वर्स 1 में लिखा हुआ है, जब अमस्या राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था। देखिए, द एज ऑफ 25 years old में परमेश्वर ने उसके पिता योआश के मरने के बाद में यहूदा में उसको राजा उसको बनाया था। और ये बड़ी परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में इस बात को हमको समझना है कि परमेश्वर के सामने कोई भी बात कठिन और असंभव नहीं है। यदि हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के सामने सब कुछ संभव है।
तो यहाँ पर देखिए आज एज ऑफ 21 ईयर के ओल्ड में परमेश्वर ने अमस्या को यहूदा का राजा बना दिया है, और नीचे वहां पर कहता है कि वो 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। 29 years ही रूल, उसने 29 वर्ष तक उसने यहूदा में राज्य किया वहां पर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके और एक खासियत यहाँ पर देखते हैं कि अमस्या के बारे में 25 चैप्टर वर्ष 4 में इस बात को हम जानते हैं वचन पढ़ने के द्वारा कि अमस्या राजा होने से पहले, राजा होने के बाद में भी वो मूसा की व्यवस्था को या मूसा की परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था को उसने पढ़ा था। उसने मतलब वो परमेश्वर की वचन जो व्यवस्था बोलता है, मूसा की जो 5 पुस्तक है वो पढ़ा था, वो सब जानता था। इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि राजा बनने के बाद में उसने अपने पिता को, जिसने उसके पिता को मारा था, उन सब को हत्या करने के बाद में वहां पर कहता है कि उसके पिता के हत्यारा को, खूनी को मारने के बाद में उनके बच्चे को नहीं मारता है वो, क्योंकि लिखा है कि वहां पर उसने मूसा की व्यवस्था के अनुसार वहां पर लिखा है कि जो पाप करे वही मार डाला जाए, पुत्र के कारण पिता को न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र को मार डाला जाए। तो यहाँ पर इस बात को भी हम जानते हैं कि अमस्या राजा परमेश्वर का या तो मूसा की व्यवस्था को भी पढ़ा था, वो जानता था वो। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि हम उसने वहां पर मूसा की व्यवस्था को मानते हुए अपने पिता के खूनी को हत्या करने के बाद बावजूद भी उसने उनके बच्चों को उन्हें हत्या नहीं किया। तो यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि, और दूसरा चौथा बात हम यहाँ पर पाते हैं कि अमस्या के बारे में 13 उसी का 25 अध्याय उसका 14 वचन में हम पढ़ते हैं, जब अमस्या एदमियों को संहार करके लौट आया, तब उसने सेरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवताओं करके खड़ा किया और उनके सामने दंडवत करके उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। यहाँ पर चौथी बात हम अमस्या के जन पाते हैं कि वो बड़ा शूरवीर था, वो योद्धा था वो। हाँ, 4 गुण यहाँ पर हम देखते हैं। पहले तो एज ऑफ 25 years ओल्ड वो राजा बना। दूसरी बात 29 years उसने यहूदा में उसने राज्य किया। और तीसरी बात वो मूसा की व्यवस्था को जानने वाला, मूसा की व्यवस्था को पढ़ने वाला व्यक्ति भी था। और चौथी बात वो बहुत ही वीर था, बहुत ही योद्धा था, बहुत ही साहसी इंसान था वो। लेकिन हमारा जो पाठ है आज का, हम 9 पद पढ़ते हम लोग कि अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इजरायलियों के दल को दे चुका हूं उसके विषय में क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। हमारा आज का विषय है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ हमने खर्च किया है, जो कुछ हमने अपने गलती से, अपने भूल से या अपनी हार से जो भी हमने खोया हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे भी अधिक हमारा परमेश्वर हमको दे सकता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए हम आए हुए हैं। तो पहली बात तो हमको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर जो हम चाहते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहने से बढ़कर या हम मांगने से बढ़कर प्रभु हमको दे सकता है। इस बात को हमको विश्वास करना है। आज हम अमस्या के जीवन से कुछ बातें सीखते हैं। प्रियो, आज यदि मेरा परमेश्वर मेरे मांगने से बढ़कर दे सकता है, मेरे विनती करने से बढ़कर उससे कई गुना अधिक प्रभु मुझे दे सकता है, लेकिन हम आज इस बात को सीखते हैं कि अमस्या के जीवन के द्वारा क्यों परमेश्वर के भक्त ने अमस्या को ऐसा कहना पड़ा कि हे अमस्या, कि परमेश्वर के पास ऐसा शक्ति है, जो तूने दिया है उससे भी बढ़कर प्रभु तुमको देगा। तो इसलिए हम कुछ चंद बातें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं अमस्या के जीवन के द्वारा प्रार्थना में जाने से पहले। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि अमस्या राजा बनने के बाद में जब उसने सबसे पहली बात उसके जीवन में उसके कमी घटी को हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली बात हम देखते हैं, यहाँ पर देखें 25 अध्याय का 2 वचन के अंदर वहां पर हम पढ़ते हैं, उसने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है। देखिए, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि अमस्या ने वही काम किया जो प्रभु को ठीक लगता है, जो प्रभु उनसे चाहता है, जो प्रभु अपेक्षा करता है, वही काम
अमस्या ने किया, लेकिन वहां पर नीचे क्या लिखता है वहां पर, परंतु खरे मन से न किया। पहली बात, यहाँ पर अमस्या के जीवन में एक ड्रॉबैक को, एक कमी घटी को यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य तो करता था, वो प्रभु की इच्छा से काम करता था। राजा बनने के बाद 29 साल उसने राज्य किया, 29 years he ruled over the Judah। 29 साल राज्य करने के द्वारा उसने वही काम किया जो प्रभु के दृष्टि में ठीक है, जो प्रभु को अच्छा लगता है। लेकिन वचन कहता है कि उसने पूरे मन से, परफेक्ट हार्ट से उसने वो काम नहीं किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो हमको आपको उद्धार दिया है, हमें और आपको प्रभु ने उद्धार देकर संसार में रखा है। हमारा परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है प्रियो, और इस बात को हम जानते हैं कि पौलुस कहता है कि जिसने पुत्र, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को रख नहीं छोड़ा, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया, तो वो परमेश्वर हमको बहुत कुछ क्यों नहीं देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे, हमारे चाहने से बढ़कर देने का सक्षम हमारा प्रभु रखता है, देता भी है, लेकिन उसका कंडीशन एक है कि पूर्ण मन से, हम लोग खरे मन से हमें प्रभु का काम करना है। हमारे जीवन में हम सब कुछ तो करते होंगे, हम लोग आराधना में आते होंगे, संगति में आते होंगे, प्रार्थना में आते होंगे, आराधना करते होंगे, सब कुछ भाग लेते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हमको जांचना है, क्या मैं परफेक्ट हार्ट से, क्या मैं खरे मन से मैं प्रभु का काम करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारा परमेश्वर उन प्रियों से, उन लोगों से प्रसन्न होता है जो खरे मन से, द परफेक्ट हार्ट से, पूर्ण हृदय से प्रभु के काम करता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु हमको सहायता करे। आज हम सब कुछ करते होंगे, प्रभु के घर में काम करते होंगे, हम लोग सेवा करते होंगे, वचन देते होंगे, सब कुछ करते होंगे प्रियो, लेकिन आज हम अमस्या के तरह कहीं ना कहीं आज हम आधे मन से या पौना मन से हम आज प्रभु के काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, हमारा जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि वचन कहता है प्रियो, संपूर्ण हृदय से काम करने वाले, संपूर्ण खरे मन से, परफेक्ट हार्ट से काम करने वाले व्यक्ति को, विश्वासी को से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। एक वचन पढ़ते हैं, उसको जानने के लिए हम लोग फर्स्ट क्रॉनिकल की किताब 29 अध्याय, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल 29 चैप्टर, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, उसका 9 वचन मैं पढ़ता हिंदी में। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन से, परफेक्ट हार्ट, खरे मन से और अपने अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुए। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर की जन, प्रजा के लोग आनंदित होते हुए प्रभु के घर में, वहां पर कहता है कि खरे मन से अपने अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी है। किसी की दबाव से नहीं, किसी की जबरदस्ती से नहीं, किसी के डर से नहीं, किसी मनुष्य के डर से नहीं, किसी प्रभु के दास के डर से नहीं, किसी जिम्मेवारी के डर से नहीं, हमें और आपको खरे मन से, पूर्ण हृदय से हम जब प्रभु के काम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभु का हर काम करते हैं प्रियो, ऐसे प्रार्थना, ऐसे काम करने वाले विश्वासियों के लिए, ऐसे काम करने प्रियों के लिए परमेश्वर के ये वचन हमारे लिए है आज प्रियो, कि जो कुछ भी हमने हमारे कमी घटी में हमने खोया हुआ है, वो प्रियो हमारा परमेश्वर उससे बढ़कर हमें प्रभु क्या करता है, दे सकता है। तो ये पहला ड्रॉबैक हम देखते हैं यहाँ पर कि अमस्या के जीवन में उसने वही काम किया जो प्रभु की दृष्टि में ठीक था, लेकिन उसने पूर्ण मन से, खरे हृदय से, परफेक्ट हार्ट से उसने वो काम नहीं किया। दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं कि अमस्या ने परमेश्वर के ऊपर या प्रभु के वचन के सामर्थ्य पर, प्रभु पर उसने, परमेश्वर यहाँ पर उसने भरोसा नहीं किया। दूसरा उसका ड्रॉबैक हम देखते हैं यहाँ पर, अमस्या ने परमेश्वर यहोवा पर, जिस परमेश्वर ने उसको 25 साल की उम्र में राजा बनाया, उस परमेश्वर पर उसने भरोसा नहीं किया। उस परमेश्वर के वचन पर, उसके वचन के सामर्थ्य पर, परमेश्वर पर उसने संपूर्ण रूप से भरोसा न करने के द्वारा उसने अपने जीवन में एक हानि को उठाता है वहां पर। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि अमस्या ने
गिनती के ऊपर उसने क्या किया, उसने भरोसा किया। यहाँ पर हम पढ़ते इस बात को, हम लोग 25 अध्याय का 5 पद पे हम पढ़ते हैं। तब अमस्या ने योद्धा को वरन सारे यहूदियों और बेन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनके पितरों के घरानों के अनुसार सहस्त्रपतियों शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उसमें से जितनों की आयु 20 वर्ष की अवस्था उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। यहाँ पर देखिए, अमस्या राजा ने अपने प्रधान को नियुक्त करने के बाद में उसने क्या किया, उसने गिनती लिया, उसने यहूदियों से और बेन्यामीन गोत्र से उसने गिनती लिया। गिनती करने के बाद हम यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने यहाँ पर कहता है कि 20 वर्ष से भी अधिक आयु के लोग जो भाला चलाने वाले में अत्यंत निपुण, ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा, उसने कितना पाए वहां पर उसने किया, वहां पर लिखा हुआ है वहां पर 3 लाख योद्धा, 3 लाख 20 साल से भी अधिक उम्र का योद्धा, भाला चलाने वाले, ढाल उठाने वाले, इतनी बड़े बड़ा योद्धा उसने पाया उसने। लेकिन दुख की बात है, हम नीचे हम पढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों, उन 3 लाख बड़े योद्धा जो पाए गए थे उनके यहूदी और बेन्यामीन की गोत्र में, उन 3 लाख भाला चलाने वाले, शस्त्र चलाने वाले सिपाही से, लड़ाकू से, योद्धा से अमस्या संतुष्टि नहीं था, उसमें खुश नहीं था, उसमें उसने भरोसा करना उसने कुछ मुनासिब नहीं समझा उसने। तो उसने क्या किया, देखिए उसने वहां पर कहता है 6 पद पे कहता है, फिर उसने 1 लाख इजरायलियों शूरवीरों को भी 100 के कार चांदी देकर बुलवाया। यहाँ पर उसने गलती किया प्रियो। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट हम पाते हैं कि अमस्या ने, जिस परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था 25 साल की उम्र में, उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर, उन परमेश्वर पर भरोसा न करते हुए, और जो प्रभु ने दिया है उनको ऑलरेडी 3 लाख भाला चलाने वाले शस्त्रपतियों, उसके योद्धाओं को दिया है, फिर भी उसके ऊपर भरोसा न करते हुए उसको लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए काफी नहीं है, इतना सेना मेरे लिए काफी नहीं है, और अगर मैं ये सेना को लेके जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। ये डर के कारण से प्रियो यहाँ पर उसने दूसरा उसका ड्रॉबैक, तीसरा उसका पहला ड्रॉबैक उसका पूर्ण मन से खरे काम नहीं किया, दूसरा परमेश्वर की सामर्थ्य उसने विश्वास नहीं किया, तीसरी बात है अपने बलबूते पर, अपने रुपयों पर भरोसा करते हुए उसने क्या किया, 1 लाख सेना इजरायलियों से उसने मंगा लिया। कितने मंगा लिया? 100 किक्कार चांदी से उसने मंगा लिया। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में इस बात को हमको सीखना है, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमें और आपको नंबर में, गिनती में भरोसा करने के बजाय परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के वचन पर हमको भरोसा करना है, उन पर विश्वास करना है। जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया हुआ है, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमारा प्रभु ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस कल्वे क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमको खरीदा है। हमारे प्रभु जानता हमारे कमी घटी को प्रियो, इसलिए दूसरा पर हम पाठ को पढ़ते हैं कि हम आपको परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य, हमारे प्रभु की बल पर हमको आपको भरोसा करना है, न कि हमारे नंबर में, गिनती में, अरे मेरा इतना है क्या होगा, उतना क्या होगा, नहीं। हमारे जीवन में जो नंबर में, गिनती में हमको भरोसा न करते हुए परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर हमको क्या करना है, भरोसा करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा ड्रॉबैक अमस्या का, कि उसने, जो उसके पास पैसा था, वो क्यों राजा है, वो है ना, अपना ही अधिकार को जताते हुए उसने बिना किसी सम्मति के साथ में उसने इजरायलियों के में से 100 की कर चांदी में से उसने 1 लाख और सैन्य को, और सैनिक को, और सिपाही को, योद्धा को मंगाता है प्रिय भाई बहनों। यह होगा तीसरा ड्रॉबैक। चौथा ड्रॉबैक हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, जब उसने 100 की कर चांदी जब उसने इजरायलियों को दिया और मंगाया उसने सेना को, ये 100 की कर चांदी देने से पहले उसने प्रभु की जन को, प्रभु की दास को, या प्रभु की भक्त को, या प्रभु को उसने नहीं पूछा। उसने क्या, प्रभु मेरे पास ये 100 की कर चांदी लेके इजराइल को मैं मंगाऊं क्या, सैनिक को करके? ऐसा अमस्या ने नहीं पूछा परमेश्वर को। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर चौथा हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन के अंदर भी आज हमारा परमेश्वर के सामने
हम आने से इस बात को हमको जानना है कि यदि मेरे जीवन में मुझे लगता है कि कोई मेरा कमी घटी है, तो हमारा जो काम है फिर हमको सहमति, हमको 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 क्या करना है, हमको सलाह करना है, हमको एक साथ में आना है, बातचीत करना है प्रिय भाई बहनों। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अमस्या ने बिना सलाह किए हुए, बिना प्रभु के भक्त का पूछे हुए उसने क्या किया, अपने ही इच्छा के द्वारा उसने 100 की कर चांदी से इस्राएलियों की सेना को उसने मंगाता है। ये हो गया चौथी बात। लेकिन पांचवी बात है, यहाँ पर इस बात को हम सीखते हैं प्रिय भाई बहनों, उसने एक्चुअली देखा जाए तो वहां पर ये अमस्या ने इजरायलियों को से सेना को उनको नहीं भगाना था, क्योंकि यहाँ पर कहता है, देखो 7 पद में यहाँ पर कहता है, 25 चैप्टर वर्स 7 में कहता है, हे राजा इजराइल को सेना तेरे साथ जाने ना पाए। यहाँ पर देखिए प्रभु का भक्त स्पष्ट यहाँ पर कहता है कि हे राजा इजराइल की सेना जो तूने मंगाया है, तूने बुलाया है, 100 किक्कर चांदी को देके वो तुम्हारे संग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कहता है कि क्योंकि यहोवा इजराइल अर्थात एफ्रेम के समस्त संतान के संग नहीं रहता है। अरे राजा, जिस इजरायलियों के सैनिक को तुमने बुलाया है लड़ाई करने के लिए, सहायता मांगने के लिए, वो एफ्रेम की संतान, इजराइल की संतान के संग यहोवा रहता ही नहीं है। यहाँ पर हम उसकी इस बात को हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जो प्रभु की इच्छा नहीं है, उस बात को हमको नहीं करना है। यहाँ पर प्रभु के दास भक्त यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि जिन इजरायलियों के तूने बुलाया है, एफ्रेम की संतान इजरायलियों के संग परमेश्वर नहीं रहता है, उनको तुमने क्यों बुलाया? उनको क्यों? यहाँ पर ऐसा कहते हैं प्रभु के दास, क्यों कहता है? देखिए क्यों परमेश्वर यहाँ पर नाराज है इजराइल को बुलाने के लिए, उसके बाद हम जानने के पड़ेंगे बुक ऑफ होशे उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ पर क्यों परमेश्वर नाराज है इजराइलियों की सेना को बुलाने के द्वारा? बुक ऑफ होशे उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन, जल्दी ले पढ़ेंगे उसको। बुक ऑफ होशे चैप्टर 7 वर्स 8, मैं पढ़ता हूं हिंदी में, 7 का 8। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। पहली बात तो ये, इजरायली लोग, एफ्रेम लोग क्या है? देश देश लोग से मिला हुआ है, उनका जीवन अलगाव का जीवन नहीं है। और दूसरा कहता है कि एफ्रेम ऐसी चपाती धरा है जो उल्टी न की गई हो। यहाँ पर कहता है कि हे राजा, जिस सेना को तुमने बुलाया है, इजरायलियों को बुलाया है, वो इजरायली उनके जगह पे अन्य जातियों के साथ मिला हुआ है, उनका जीवन अलगाव का जीवन नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है। और दूसरी बात कहता है कि वो ऐसी चापाती है, ऐसा रोटी है जो उल्टी न की गई हो। प्रियो, आज हम चापाती को जब रोटी पकाते हैं तवा के अंदर, यदि उसको हम उल्टा करके नहीं, उल्टा पलटा नहीं किया, एक तरफ क्या होता है? कच्चा होता है। तो यहाँ पर प्रभु का कहने का अर्थ है कि इजरायली लोग, एफ्रेमी लोग, जिसको तूने बुलाया है लड़ाई के लिए, लड़ाई करने के लिए 100 किक्कर चांदी बुलाया है, वो ऐसे जाति है, वो उनसे पूरा मिला हुआ है, और वो उल्टी न के, वो पका हुआ नहीं, आधा पक्का आधा कच्चा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि अमस्या ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, जो प्रभु नहीं चाहता है वो काम अमस्या कर रहा है वहां पर। ये हो गया। और यहाँ पर हम आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर उसने क्या किया? पैसा दिया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इतने सारे ड्रॉबैक होने के बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम को यहाँ पर देखते हैं कि अमस्या ने गलती किया, लेकिन फिर भी प्रभु का प्रेम को देखिए। यहाँ पर हम 9 पद में आज हमारे पाठ में पढ़ेंगे, 9 पद के अंदर, फिर जो 100 किक्कर चांदी मैं इजरायलियों को दल को दे चुका हूँ, उसके विषय क्या करूं? यहाँ पर कहता है कि राजा कहता है अपने भक्त से, प्रभु के जन से, अरे भक्त प्रभु के जन, मैंने 100 किक्कर मैंने दिया हूँ, मैंने उनको बुलाने के लिए, उसका मेरा पैसा तो गया ना, वेस्ट में, पानी में गया ना, मैं क्या करूं उसके लिए? प्रभु को प्रेम को देखिए। प्रभु दास कहता है कि हे राजा अमस्या, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। इस बात को हमको विश्वास करना है प्रियो। आज हमारे जीवन में अमस्या की तरह, आज हमारा अपनी 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 भूल के द्वारा, गलती के द्वारा, या हमारे जीवन में अपनी कमी घटी के द्वारा प्रियो हमने आज आत्मिक की हानि उठाई होगी, हमने आज शारीरिक, हमने संसार की हानि उठाई होगी। लेकिन प्रियो, यदि आज मैं और आप खरे मन से, पूरे हृदय से, परफेक्ट हृदय से
प्रभु की सामर्थ पर, प्रभु की वचन पर, प्रभु पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए जब मैं प्रभु के चरण पे आता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये हमारा परमेश्वर हमारे कमी घटी के द्वारा, हमारे जीवन के भूल के द्वारा, पाप के द्वारा जो मैंने हानि उठाई है, आत्मिक की हानि हो या शारीरिक हानि हो, संसार की हानि हो, ये हमको विश्वास करना है। वचन कहता है कि इससे अधिक जो तूने हानि उठाया है, जो तेरा हानि हुआ है, जो तेरा नुकसान हुआ है, उससे कहीं अधिक ज्यादा प्रभु तुमको दे सकता है। ओ प्रियो, क्या हमारा प्रभु इतना महान नहीं है? ऐसे प्रभु के सामने हम खरे मन से हम अपने जीवन को हम लोग प्रिय भाई बहनों प्रभु के चरण में सौंपेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आज तक 2022 तक मैंने जो भी अपनी गलती से, कमी घटी से, मेरा भूल चूक से, मेरा हट्टीपना से, मेरा डींगमारी से या मेरा घमंड से मैंने जो भी हानि उठाया हूँ प्रभु जी, आत्मिक की हानि, शारीरिक हानि, संसार की हानि उठाई हूँ प्रभु जी, प्रभु के चरण में जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा वो समझ रखता है कि हमने जो भी हमने हानि उठाया है उससे बढ़कर प्रभु हमको देगा। हमको दो काम करना है, प्रिय, उसको पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पहला पढ़ेंगे जेम्स याकूब की किताब, उसको पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। याकूब की किताब उसका 4वां अध्याय, बुक ऑफ जेम्स, उसका हम पढ़ेंगे 4वां अध्याय का, उसका पढ़ेंगे हम लोग 8 वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दुचित्ते लोगों, दो मन के लोगों, दोगला लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रियो, हमारा परमेश्वर के सामने हमारा दो मन है ना, हमारा जो हृदय को तोड़ते हुए, दुखित होते हुए, खेदित होते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए हम प्रभु के निकट में आएंगे। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर का वचन है कि जो कुछ हमने हानि उठाया है, जो कुछ हमने कमी घटी को कमी घटी के द्वारा हमने जो भी हानि उठाया हुआ, नुकसान हुआ है, उससे बढ़कर, उससे ज्यादा प्रभु हमको आपको आज भी देगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। और वचन पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों की किताब 11 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन। और बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और खोजने वालों को प्रतिफल देगा। प्रियो, हम प्रभु के पास में आए हैं प्रार्थना करने के लिए, विश्वास करना कि मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा, और प्रभु का वचन को विश्वास करते हुए उसके खोजने वालों को प्रतिफल प्रभु देता है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अमस्य के जीवन में परमेश्वर ने बड़ी दया की है। उसने भूल किया, गलती किया, खरे मन से उसने प्रभु को सेवा नहीं किया, उसने प्रभु की सामर्थ पर उसने भरोसा नहीं किया, उसने बिना पूछे समझे उसने इस्राएलियों की सेना को मंगा लिया, उसने पैसा भी दिया और कहता कि अरे पैसा जो दिया उसका क्या होगा। फिर भी हमारा प्रभु प्रेमी परमेश्वर कहता है कि अपने भक्तों के द्वारा, हे राजा, जो तूने खर्च किया है, जो तूने हानि उठाया है, जो तूने पैसा दिया है, उसका डबल परमेश्वर हमको तुमको देगा। वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में भी हमने जो हानि उठाया है अपने गलती के द्वारा, भूल के द्वारा, कमी घटी के द्वारा, उसका डबल प्रभु हमको आपको देगा। कभी देगा? जब मैं प्रभु के चरण पे विश्वास के साथ ले आता हूँ। हमको सारी काम करना है। पहली बात तो परफेक्ट हृदय से हमें प्रभु के पास में आना है। दूसरा है, हमें प्रभु की वचन पर, प्रभु की सामर्थ पर हमको भरोसा करना है। और तीसरी बात प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में हमें प्रभु की सामर्थ पर भरोसा करते हुए आज हम प्रभु के चरण पे आते हैं। हमको विश्वास करना है कि हाँ, मेरा प्रभु मुझे सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु कहता है, बुक ऑफ दानियल उसका 1 वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। बुक ऑफ दानियल, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? प्रेमी प्रभु है। हम गलती करते हैं, भूल करते हैं, हम लोग कई समय अविश्वास हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु क्या है? दयालु प्रभु है। इसीलिए जब तक प्रभु की दया हमारे ऊपर है, प्रभु के अनुग्रह है प्रिय भाई बहनों,
हम प्रभु के चरण पे आते हुए हमने जो हानि किया हुआ है उसको हमको क्या करना है, दोबारा हमको लेना है। 9 अध्याय बुक ऑफ डैनियल 9 अध्याय उसका 9 वचन मैं पढ़ता हूँ। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर के प्रभु से फिर गए तो भी तो दया का सागर और क्षमा की खान है। प्रियो, हमारा प्रभु का ये अनुग्रह प्रेम देखिए, हमारा प्रभु दया का सागर है। वो जैसा सागर में से, समुद्र में से हम एक बाल्टी पानी को उठाते हैं, उसमें कोई कमी घटी नहीं होता है, वैसा हमारा प्रभु का क्या है, दया है और क्षमा का खान है। खान में जितना हम खोदेंगे उतना कोयला निकलता है। प्रिय भाई बहनों, वैसा हमारा प्रभु का क्षमा का खान है। हम जब प्रभु के चरण पे अपने आप को नम्र बनाते हुए, दीन बनाते हुए हम प्रभु के चरण पे आते हैं तो हमारा प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। और प्रभु हमें प्रतिज्ञा देता है आज कि जो कुछ भी हमने हानि उठाया है उससे बढ़कर गॉड इज एबल टू गिव। परमेश्वर देने में सक्षम है। ऐसा प्रभु के पक्ष में हम आए हैं। प्रभु हमको सहायता करे, हमें खरे मन से और प्रभु की सामर्थ पर विश्वास का, प्रभु की सामर्थ पर भरोसा करते हुए, वचन पर भरोसा विश्वास करते हुए हम जब प्रभु के चरण पे आएंगे तो निश्चय हमारा प्रभु भी हमसे के जो ने काम किया वही कार्य प्रभु हमारे जन्म में करेगा। प्रभु छोटे बच्चन में आशीष दे, प्रभु हम सहायता करें, हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। ब्रदर, Thank you, brother.